Hello. Hello. Am I audible? Hello. Evening, ma'am. Yeah, good evening, beta. And okay, so many of you are joining. Be fast. Be fast. Okay. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Yeah. Good evening, beta. How are you? Are you all fine? Yes, Good sir. evening, sir. Yeah. Good evening. Good evening. Okay. I guess we are meeting for the second time, na? Yes, sir. Yeah. I can memorize the names. Okay. Fine. Okay, beta. So now I guess it's time for me to begin with this session. So let me first introduce myself. This is Atul Kumar, and I'm your tutor for the day. And yeah, today we'll be dealing with this fourth session of life processes. Okay. So before beginning with this session, let me also introduce you to this platform. You'll be having for five options. First, you'll be having this audio and video option. You know that you need to keep yourself muted, and if possible, please turn on your videos. Yeah, हो सके तो वीडियो ऑन कर ही लो सब लोग. सारे लोग वीडियो ऑन कर लीजिए अगर हो सके तो. सर मेरा एरर है वीडियो ऑन करने में, हर मीटिंग में ऐसा ही होता है। नहीं, आप विजिबल हो. ओम, आप सर विजिबल हो. विजिबल हूँ, बिल्कुल विजिबल हो. पर मेरे में तो NULL दिखा रहा है। कोई नहीं, आप एकदम क्लियरली विजिबल हो. थोड़ा सा ब्लर हो, मतलब मे बी नेटवर्क की वजह से, बट आप विजिबल हो. ओके या डन. अदर्स प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. Then you also have this chat box. You know that you can interact with me with this chat box. You can ask your queries, answer my questions, or anything of that kind. Then you also have that hand raise option. So in case you feel like आपको कुछ भी अपने ऑडियो में पूछना है, you can always go to, I mean, just raise up your hand, and I'll be taking up a comfortable pause and then take up your question. Then you also have this troubleshoot option. So in case you feel like any technical issue is there at your end, you can always go to that troubleshoot option and get it sorted. And now looking at your attendances, I can see it's Shruti. सिर्फ श्रुति है जिसका 100% है. और 4 स्टूडेंट मन्नत, लोकेश, दिव्यांशु और अनिस, इनका 1 डे एब्सेंस है सिर्फ. बहुत बढ़िया श्रुति, बहुत बढ़िया. Sir. हाँ, और बच्चा लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बहुत कम है. आपको थोड़ा सा काम करना है अटेंडेंस पे, ठीक है. बी मोर रेगुलर. चलिए, नाउ आई कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. आप तो हिंदी मेरा सुन ही लिए है ना. तो I'll be continuing in bilingual languages. I guess all of you are comfortable in हिंदी. सबको हिंदी समझ में आता है? जस्ट थम्स अप कर दो, समझ जाऊंगा मैं भी. या डन डन डन. ओके बेटा. सो अभी हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. बट एक बहुत अच्छा मेरे पास एक एक्साइटिंग आपके लिए एडवर्ट, आई मीन, एक इंफॉर्मेशन है. शायद आप जानते भी होंगे अबाउट दिस मास्टर क्लास एक्सेल. ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें हम इंडस्ट्री की एमिनेंट जो भी पर्सनालिटीज हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट, इन सभी को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो आपको मोटिवेट कर सकें, आपको अपना कुछ इनसाइट्स दे सकें, ताकि आप भी सक्सेस का वो जो मंत्र होता है ना, वो जान सको. फर्स्ट सेशन ऑफ दिस काइंड वुड बी डन ऑन 7th May at 2 PM बाय मिस्टर VVS लक्ष्मण. आप सब जानते हैं VVS लक्ष्मण को. आप, इंडिया एक क्रिकेट लविंग कंट्री है. So we all know about this VVS Lakshman. VVS Lakshman बहुत बहुत बड़े बैट्समैन थे अपने टाइम के. Now he has retired. And yeah, एक और बात ध्यान रखिएगा कि this session would be a live session. So आपको इसका recording नहीं मिलेगा. One more thing is like you can also join this session along with your parents, your family members. Maybe आप अपने friends को भी invite कर सकते हो. And for that I'm sharing the link in the chat box. Yeah, देखो मैंने link भी share करा है. You can share this link to your friends also. Now I guess it's time for me to begin. So इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप में चलते हैं. हमने लास्ट क्लास में अलग अलग तरह के सेल्स के बारे में जाना था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट.
इन दोनों सेल के पीछे जो हमारा बेस था वो था, अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो यूकैरियोट बोलेंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो हम प्रोकैरियोट बोलेंगे. Talking about that prokaryote before nucleus और primitive nucleus. Talking about the eukaryote, इसका मतलब होता है true nucleus. Membrane bound cell organelles absent होते हैं in case of prokaryote. वापस यहाँ लिख देता हूँ, absent होते हैं prokaryote में, and it is present in case of eukaryote. Cell size छोटा होता है 0.1 to 5 micron meter. Okay. एंड यूकैरियोट्स में थोड़ा बड़ा होता है, इट इज फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोन मीटर. ये तो बात हमने करा सेल के डिफरेंस बेसिस पे, आई मीन न्यूक्लियस डेवलप्ड है या नहीं इस बेसिस पे. हेलो सर. हाँ 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 बोलो. ओम, आपका आवाज बिल्कुल ब्रेक हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, वापस से ट्राई करना. पर ये जो आपने बताया नहीं ओम, आई कैनॉट हियर यू एट ऑल. I cannot hear you at all. Please use the chat box. है ना. ऑडिबल नहीं हो चैट बॉक्स, हाँ चैट बॉक्स यूज करो, क्योंकि एकदम आवाज नहीं आ रहा वो, और टेक्निकल इश्यूज की वजह से वॉइस में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस है, बहुत ज्यादा आवाज है. आप चैट बॉक्स पे भेजो, फिर मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है. तब तक आगे बढ़ते हैं. देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट दैट जीन पार्ट, क्रोमेटिन पार्ट, डीएनए पार्ट. हमने पढ़ा कि सबसे छोटा होता है डीएनए, आई मीन जीन, ये फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए है. उससे थोड़ा बड़ा डीएनए जो कि एक आई मीन एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इसका 2 स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड बायोमॉलिक्यूल. जब उसका इंटैंगल्ड मास होता है, वी आर कॉलिंग इट एज क्रोमेटिन फाइबर, एंड दिस क्रोमेटिन फाइबर व्हेन गेट्स ऑर्गेनाइज्ड यू कॉल इट एज क्रोमोसोम. And then chromosome is present inside the nucleus. Gene, this is DNA, then the chromatin fiber, then the chromosome, and then finally the nucleus. उसके बाद हमने 4 सेल ऑर्गेनल के बारे में भी पढ़ा था. टॉकिंग अबाउट दोस 4 ऑर्गेनल, सबसे पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा. न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है. इसके सेंटर को न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जहां राइबोसोम सिंथेसाइज होता है. हाँ हाँ ओम, इस बार भी मैं वही बोल रहा हूँ, 5 to 100 माइक्रोन मीटर, नॉट एन बेटा, 5 to 100 माइक्रोन मीटर. देखो, आई मीन नॉट 5, इट्स 10 to 100, नॉट 5. वैसे आप 5 भी बोलोगे तो चलेगा, आप इसको 5 भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है. ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हम लेकर चलते हैं, थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेशन लेकर चलते हैं. 5 to 100 भी बोलोगे आप चलेगा, आप 10 to 100 भी बोलोगे तब भी चलेगा. आपके लेवल पे एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता कुछ भी, ठीक है ओम. ओम, इज इट फाइन? 5 to 100 भी बोलोगे सही है, 10 to 100 भी बोलोगे सही है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीमेशन है. 5 माइक्रोन मीटर बहुत छोटा लेंथ होता है, बहुत छोटा, तो हो सकता है थोड़ा सा का अंतर. जैसे मान लो अभी मैं आपको एक ये लाइन खींच के दे दूं और बोलूं कि बेटा जरा ऐसे सेल से स्केल से मेजर करो. मे बी कोई से मेजर करेगा 1 सेंटीमीटर, कोई मेजर करेगा 1.1 सेंटीमीटर, और मे बी कोई ऐसा भी होगा जो मेजर करेगा 1.01 सेंटीमीटर. इट्स पॉसिबल ना. सो दिस इज द सेम केस हो भैया, थोड़ा सा बहुत छोटा लेंथ है, इट कैन बी डन लाइक इन दिस वे. So nucleus, it is the control center of the cell, and in the mid of it there is nucleolus that synthesizes ribosomes. Then ribosome is the protein factory of the cell, present in both in free form in cytoplasm, while and sometimes associated with ribosome also. Then we call it as RER, or rough endoplasmic reticulum. Then talking about this endoplasmic reticulum, again two types, SER and RER. SER lipid synthesis में role play करता है, RER protein synthesis में role play करता है. Then talking about Golgi complex, ये पैकिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में हेल्प कर रहा था, ठीक है. नाउ वी आर टू अ क्वेश्चन, एंड देखते हैं क्वेश्चन कौन सॉल्व कर रहा है. सबसे पहले द क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनेल. आपको सेल ऑर्गेनेल के बारे में इनमें से कोई चूज करना है स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. क्या लगता है, सही है गलत है? सब लोग जो डाउट नहीं पूछ रहे हैं, हाँ देवेश बोलो बेटा, क्या होगा? सर ये सही है सर, सेल मेम्ब्रेन होता है इन्वॉल्व उसमें.
नहीं बेटा, सेल मेम्ब्रेन कहाँ इन्वॉल्व होता है? फॉल्स है, ये फॉल्स है। सेल मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन तो गेट कीपर था, याद आ रहा है? गेट कीपर जो कि कंट्रोल करता है क्या किसी सेल के अंदर आ रहा है, क्या सेल से बाहर जा रहा है। ये मतलब इन्वॉल्व नहीं होता सेल डिवीजन में। ये अलग बात है कि वो भी डिवाइड होता है, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट सही है गलत है? बताइए बच्चा लोग, बोलिए बोलिए बेटा। अगर आप इतना जल्दी बोलकर अनम्यूट कर लेंगे, वापस से म्यूट कर लेंगे तो नहीं आएगा आवाज। चलिए ठीक है, श्रुति, अनेस, मरियम, क्या बात है, इतने लोग। रिति भी रिस्पॉन्ड कर रही है। लोकेश बेटा आप रिस्पॉन्ड करिए, मन्नत आप भी रिस्पॉन्ड करिए। चलिए मन्नत भी रिस्पॉन्ड करा, वेरी गुड। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन में एसईआर का रोल है। देन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ये सही बात है कि यही था वो फ्लोर, याद आ रहा है? लास्ट क्लास में हमने कंपेयर करा था फ्लोर, प्रोडक्शन फ्लोर, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कर रहा है? फोर्थ स्टेटमेंट इज सेइंग कि माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन पैकेजिंग, ये भी गलत बात है, फॉल्स। चलिए एक और क्वेश्चन है बेटा। दिस टाइम द क्वेश्चन इज कि आपके फादर का ब्राउन आई है तो आपका भी ब्राउन आई हो सकता है, सही बात है। मे बी आपकी मदर का कर्ली हेयर है तो मे बी कि आपका भी कर्ली हेयर हो, सही बात है। तो ये सारे कैरेक्टर का ट्रांसफर कैसे होता है, क्या लगता है? हाँ, क्रोमोसोम। हाँ बिल्कुल, क्रोमोसोम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लोकेश आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे बाबू, सब लोग बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हो। लोकेश आप भी रिस्पॉन्ड करिए बाबू। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज क्रोमोसोम, ठीक है। नाउ अगेन वी आर टू डाउट बोर्ड, सो कुछ भी डाउट हो तो बोलिए, एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क। Sir, no doubt. ओके डन। सो जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था कि हम एक एनालॉजी क्रिएट कर रहे थे जहां सेल के अलग अलग पार्ट्स को एक चॉकलेट फैक्ट्री से कंपेयर कर रहे थे और फिर डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, सेल को चॉकलेट फैक्ट्री से कंपेयर करना। And the next cell organelle we'll be discussing while comparing this, while creating that analogy is this mitochondria. So mitochondria को आप पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हो, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये किसी फैक्ट्री के पावर यूनिट की तरह होता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल के बारे में दो तीन बात आपको जानना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। ये सेमी ऑटोनोमस होता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इवॉल्व करा है किसी एक ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल से जिसको कोई यूकैरियोटिक सेल इंगल्फ कर गया है। तो पावर हाँ, ओम आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है बेटा, अभी तो थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ गया, बट प्लीज ट्राई टू यूज दैट चैट बॉक्स ओनली, ओके। मे बी नेटवर्क इशू है, या फिर आप किसी अपने रूम को चेंज करने की कोशिश करिए ना, मे बी मूविंग आउट टू सम डिफरेंट रूम जहां नेटवर्क थोड़ा अच्छा हो, मे बी हैविंग विंडो और लाइक दैट। चलिए, so now to explain, to get a clear idea of this mitochondria, I am calling our master tutor. Now, mitochondria can be considered as a semi-independent organelle. Technically, we call that semi-autonomous organelle. But what do I mean when I say it takes care of itself? So, autonomy of this organelle, or semi-autonomy in the case of the mitochondria, refers to the fact that the organelle can divide by fission and create more of its own. And it contains a few circular DNA molecules, we call those mitochondrial DNA, which code for a couple of mitochondrial proteins. Now, the mitochondria also contain ribosomes and RNA molecules, which are required for the synthesis of the mitochondrial proteins. This is a mitochondria. Let's just open it up and check it out. As you can see, it's a double membraned organelle. While the outer membrane is quite smooth and permeable, the inner membrane has many invaginations or inward foldings. We call those cristae. I'll tell you exactly why those are there a bit later. Now, the inner membrane divides the cavity or the lumen enclosed by the organelle into a couple of spaces or a couple of different compartments. The first is called the perimitochondrial space, which is also called the outer compartment, as you can see over here. Then you've got something called the matrix, which is the inner compartment, right? So these are the two different spaces that you can see. Remember, I asked you,
why do you think there are infoldings in the inner membrane of the mitochondria? So what I'm going to do is, so assume this is the inner membrane of the mitochondria, right? Okay, it's just a simple oval, right, with absolutely no infoldings or inner protrusions, right? Now, imagine that there are elementary particles sitting on these. Now what I'm going to do is that I'm going to create the infoldings or the inward protrusions on the membrane. And you will observe that now you can have many more particles, right? This means that greater surface area which is available means more working surface available for the functioning of the mitochondria. Some organelles take care of themselves. Yes. So now let's discuss the structure of mitochondria. Now talking about the structure of mitochondria, as I said, it is a double membraned. Okay. So keep it in mind, there are three structures, three organelles that are double membrane: mitochondria, plastid, and a nucleus. Three of them are double membrane. So then there is some infoldings. Infolding increases the surface area, and that you call as cristae. Okay. And this all increases the surface area for the production of ATP. Okay. So they also have their own genetic material. Again, mitochondria and plastid. Mitochondria and plastid. They have their own genetic material. They both are double membranous. They have their own. Okay, ATP. I'm coming to it, Mariam. Then talking about like they both have their own genetic material, both have their own ribosomes also. They both are double membrane, so they are least dependent on the nucleus, and that is why they are also called semi-autonomous cell organelle. Semi-autonomous cell organelle. Okay. Yeah, talking about that ATP. ATP is called the energy currency of the cell. Anyone knows the full form of this ATP? Anyone? Full form of ATP. Yeah, Devesh, I can see you are unmuted. Do you know this? The full form of ATP? Okay, you muted. बोलिए बच्चा लोग, बताइए बताइए बताइए, घबराना नहीं है, बताइए एटीपी का फुल फॉर्म। गलत होगा तो गलत होगा, क्या दिक्कत है? बोलो पावनी। ओके, पावनी भी नहीं बोल रही। क्या बात है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी एनर्जी करेंसी है। जैसे हमारे बॉडी में जितना भी एनर्जी होता है वो सब एटीपी के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। एक पोल क्वेश्चन इज कमिंग अप, सो लेट्स टेक अप दैट पोल। सो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर कर रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द माइटोकॉन्ड्रिया इज डैश लेयर्ड मेम्ब्रेन कंटेनिंग इट्स ओन डीएनए। श्रुति सबसे पहला सही जवाब दी। अदर्स आल्सो गिव इट अ ट्राई। बी फास्टर बेटा, बी फास्टर। Only one of you is left. Yeah, done. So the correct answer to this question is डबल मेम्ब्रेन। बेटा अभी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, यही तीन ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास अपना जेनेटिक मटेरियल अलग से होता है न्यूक्लियस वाले के अलावा। साथ में इनके पास अपना राइबोसोम होता है और ये ऑलमोस्ट अपने काम के लिए खुद डिपेंडेंट होता है। थोड़ा मोड़ा ही डिपेंडेंस इनका न्यूक्लियस पे होता है। एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, चलिए सो अगले में मूव करते हैं। दिस टाइम वी आर आई मीन क्रिएटिंग एन एनालॉजी बिटवीन दिस प्लास्टिड। सो प्लास्टिड ना कुछ भी नहीं, समझो कि किचन है, फैक्ट्री का किचन है।
जहां पे सारे चॉकलेट्स बन रहे हैं. ओके, प्लास्टिड्स आर द किचन ऑफ दिस फैक्ट्री. सो प्लास्टिड ही वो जगह है जहां पे सारा भी फॉर्मेशन वाला काम होता है. And now, I guess, to get a better idea about this plastid, I am again calling our master tutor. Plastids are disc-shaped, double membraned, and again semi-autonomous organelles that occur mostly only in plant cells and a few protists. Now, plastids arise from colorless precursor organelles. We call those protoplasts. Now, as the plastids mature, they produce photosynthetic pigments inside them, which imparts the plastids with specific colors, or in some case, no color. Yes, that's called colorless. So, based on the color of the plastids have been classified into 3 types: chloroplasts, chromoplasts, leucoplasts. So, let me talk about chloroplasts first. These are the most commonly occurring plastids that you would see. And since this is the most commonly occurring plastid, it's going to give plants the most common color you see on them. Yes, green. So chloroplasts contain a green photosynthetic pigment, which is called chlorophyll. The plastids are really important functionally. They take part in photosynthesis, right? Where food is synthesized from inorganic raw materials in the presence of sunlight. Remember? Yes. It is this photosynthesis that is responsible for most of the food that we eat today. Moving on, let's talk about the leucoplasts. Now, leucoplasts are colorless plastids. That means they don't have any color. And why don't they have any color? Because they don't have any kind of photosynthetic pigment. So, sometimes the starch, the lipids, the proteins are stored inside these plastids, which is why these plastids occur in such huge numbers in the cells of fruits, seeds, tubers, and so on. So they have a very high nutritional value, the places where, or the organs where these leucoplasts are present. And you've got different types of leucoplasts depending on what they do. Amyloplasts are involved in the storage of starch. Then you've got something called elaioplasts, or a simpler word would be lipidoplasts. Lipid, right? Yes, for the storage of lipids. Then you've got aleuroplasts or proteinoplasts, which gives a bigger hint. Proteinoplasts are the plastids which are involved in the storage of, yes, proteins. So the naming, as you see, actually depends on what they store, right? Let's move on to the third type of plastids. My favorite, actually, chromoplasts. Why are they my favorite? The most colorful. The colored plasmids that contain pigments other than the chlorophyll pigments. So they have carotenoid pigments that impart yellow, orange, or red. And chromoplasts are usually formed by the transformation of either the chloroplasts or the leucoplasts into chromoplasts. A good example would be the ripening of fruits like tomatoes or maybe apples, even papayas, right? Where the color of the fruit changes from green of the chloroplast to yellow or Yeah, so we were discussing about the types of plastids. तो बाबू प्लास्टिड 3 तरह का मेनली, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. 3 तरह का, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर पिगमेंट, इट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी. देन क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है. इसमें जो पिगमेंट होता है उसका नाम है, you call it as like carotenoids. Yes, you call it as carotenoids. और एक्चुअली मेरे दिमाग में अभी जो मुझे टाइम लगा सोचने में क्या था, एक्चुअली होता यूं है ना बाबू, देखो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स हो सकते हैं, जितने भी कलर्स आप देखते हो वो सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, व्हाइट को छोड़कर. व्हाइट तो ऐसे भी कुछ नहीं, तो व्हाइट, ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट और बाकी कोई कलर क्रोमोप्लास्ट. एंड कीप इट इन माइंड कि इन सारे कलर्स के लिए अलग अलग पिगमेंट होता है. तो मैं यही सोच रहा था कि आपके लेवल पे कौन पढ़ना है. आपको पढ़ना है कैरोटिनॉइड्स.
ठीक है, और भी होते हैं जैसे जैंथोफिल, फ्यूकोजैंथिन, बहुत सारा, लेकिन इतना टेंशन नहीं लेते हम लोग। वी आर मेनली कंसर्न्ड अबाउट द केराटिनॉइड्स पार्ट। ओके, ये फ्लावर और फ्रूट में कलर प्रोवाइड करता है, और मेन एम इसका ये होता है कि जैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट होगा तो कुछ तो देखकर अट्रैक्ट होगा, तो इंसेक्ट्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनी प्लांट और फ्लावर ड्यू टू दिस कलर पार्ट ओनली, ड्यू टू दिस क्रोमोप्लास्ट ओनली। ओके, देन ल्यूकोप्लास्ट नॉन पिगमेंटेड होता है, तो व्हाइट होता है। इसका काम स्टोरेज है, मेनली रूट्स में होता है, और इसका काम स्टोरेज में होता है। कई बार स्टार्च स्टोर करता है, कभी प्रोटीन, कभी लिपिड, जैसा जरूरत वैसा स्टोरेज करेगा। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले मैंने आपको कहा था, क्योंकि ये भी सेमी ऑटोनोमस है, अपना राइबोसोम होगा, इसमें भी स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा जैसे साइटोप्लाज्म सेल में होता है, जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, मतलब प्लास्टिड अलग अलग जगह पे। जैसे मान लो जहां कहीं भी आप कलर देख रहे हो, ग्रीन कलर देख रहे हो, मतलब कि वो क्लोरोप्लास्ट वाला प्लास्टिड है। अगर आप रेड देख रहे हो, येलो देख रहे हो, ब्लू देख रहे हो, ये सब क्रोमोप्लास्ट वाला प्लास्टिड है। और अगर आप व्हाइट देख रहे हो, जैसे रूट्स, तो वो ल्यूकोप्लास्ट वाला प्लास्टिड है। ठीक है बाबू, चलिए, हाँ डन। तो स्ट्रोमा ये ओम, अच्छे से बैठिए। धोखा हो गया ना, भूल गए थे कि कैमरा ऑन है, नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं बाबू, अच्छे से पढ़िए, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। अच्छे से पोस्चर मेंटेन करना जरूरी है। चलिए, स्ट्रोमा ये जो जेनेटिक मटेरियल, सॉरी, स्ट्रोमा ये फ्लूइड मैट्रिक्स है, जैसा कि साइटोप्लाज्म होता है सेल में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसी तरह ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड का मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड के मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रोमा होता है। फिर बात करें जेनेटिक मटेरियल, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया इनका अपना जेनेटिक मटेरियल भी होता है। और ग्राना, देखो दो चीज होता है, कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होता है। जैसे मान लो सिक्का होता है ना, 5 का सिक्का, उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखो, उस तरह का ये स्ट्रक्चर है। उस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को इंडिविजुअली हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड। इंडिविजुअली क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। और ग्रुप में एज अ होल हम लोग बोलते हैं उसको ग्राना। इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड थाइलाकॉइड, इन ग्रुप्स दे आर कॉल्ड ग्राना। ओके, चलिए, अब ये तो हम लोग इतना सारा डिफरेंसेस देखे प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का, लेकिन आपको पता है दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। जैसा कि मैंने आपको कहा, दोनों डबल मेम्ब्रेन, दोनों सेमी ऑटोनोमस, दोनों में फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, और दोनों एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। क्लोरोप्लास्ट भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करता है ना? जो सनलाइट था उसको पहले एटीपी में कन्वर्ट करा, एटीपी से फिर ग्लूकोज बना दिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी वही करता है, हम जो खाते हैं जो ग्लूकोज है उसको एटीपी में कन्वर्ट कर रहा है। दोनों ही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई डाउट तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क, कोई डाउट, कोई कष्ट, परेशानी, कुछ भी बताइए। बोलो बोलो बोलो। चलिए, सिर्फ मरियम ही क्यों? देवेश, माय वॉइस इज नॉट कमिंग। अदर्स, एम आई ऑडिबल टू यू? Others, am I audible to you? Okay, Devesh, I'm coming to you. You are audible. Again, your voice is continuously breaking. I cannot understand anything. Just use the chat box. Devesh, again, I cannot hear you, beta. Use the chat box. Use chat box. I cannot hear you clearly. Okay, so yeah, Devesh, am I audible now? Devesh, am I audible? आवाज आ रहा देवेश? Devesh, am I audible? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया भी और प्लास्टिड भी, आई मीन क्लोरोप्लास्ट भी, दोनों का वही काम है। दोनों ही करता है एनर्जी ट्रांसफर, यानी एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं बोलो आप, ट्रांसफॉर्मेशन बोलो। उसका फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है।
ठीक है। Okay. So now I guess it's time for me to call our master router so that we can discuss about this overall similarity in mitochondria and plastids, and specifically that chloroplast. Realize that and the mitochondria can be considered as very similar organelles, right? So let me just first compare the two structures, the chloroplast structure to the mitochondrial structure. Now, as you can see, both the mitochondria and the chloroplast are double membraned, right? Both have a smooth outer membrane that is permeable. They both have an inner membrane which is lesser permeable. And there is a narrow space called the intermembrane space for both of them. Now, the inner membrane in chloroplast surrounds a cavity called the stroma. In a mitochondria, this is called the matrix. Okay, they just call different things. Now, both the chloroplast and the mitochondria are semi-autonomous. They both have circular DNA. They both have ribosomes and enzymes to produce part of the proteins required for the functioning of the organelles. While there are similarities between mitochondria and chloroplast, there is also one big difference between the two of them. Look at the inner membrane in more detail. You will observe that the inner membrane in a chloroplast does not possess the infoldings or the cristae as you can see in the mitochondria. Instead, the chloroplast is going to have a third membrane in the form of flattened membrane-bound sacs. Let me show that to you over here. Right? Can you see this flattened sacs? They are called thylakoids. Now, thylakoids are the individual names. They together occur in stacks. We call those stacks grana. There is a cavity enclosed by the thylakoids. It's called the thylakoid space. Now, you can't leave that without a name now, can you? Thylakoids from different stacks, as you can see, are connected to each other. They're connected by tunnels. And those tunnels also get a name. They're called the stroma lamellae. So very, very intricate. And the purpose of this is to capture sunlight, right? And aid in the process of photosynthesis. If you split open a chloroplast, you will realize. So now let's see about the major structural and functional differences in mitochondria and chloroplast. So हाँ ओम बोलो. ओम बोलो बेटा, क्या डाउट है? यूज चैट बॉक्स ही यूज करना. यूज द चैट बॉक्स ओनली. हाँ हाँ बोलो, अभी आवाज आ रही है. तुम्हारे सही नेटवर्क इशू है ओम, इसलिए ऐसा हो रहा है. तुम्हारा भी वीडियो क्लियर नहीं है, तुम्हारा भी ऑडियो क्लियर नहीं है. इट्स द नेटवर्क इशू एट योर एंड ओनली. आप रूम चेंज करके देखो ना, मे बी जहाँ थोड़ा विंडो हो वैसा. ओके हाँ ठीक है. चलिए बच्चा लोग, तो हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं. मेजर डिफरेंस जो हम लोग बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का. माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में होता है. क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है. माइटोकॉन्ड्रिया बीन शेप का है और कलरलेस है, जबकि क्लोरोप्लास्ट डिस्क शेप का और ग्रीन है. फंक्शन. माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है कि एनर्जी जो फूड में है उसको ब्रेक करना टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वही क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो है कि जो लाइट एनर्जी आया उसको यूज करना, एटीपी बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करना साथ में, और ग्लूकोज फॉर्म करना. ठीक है. चलिए ओम, अगर आप कोई डाउट नहीं है और कोई इशू नहीं तो प्लीज अपना हैंड्स डाउन कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़े. हाँ ठीक है. चलिए सो अगेन वी आर टू अ क्वेश्चन. क्वेश्चन इज कि प्लास्टिड किसमें एब्सेंट होता है. 4 ऑप्शन है आपके पास. देखता हूँ सबसे पहले कौन बता रहा है मुझे. चैट बॉक्स यूज कीजिए, चैट बॉक्स यूज कीजिए. फास्ट 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 बेटा फास्ट. ओके आई गॉट द आंसर. डी. क्या बात है. सबसे पहले श्रुति बताई. सही आंसर डी है. बिल्कुल 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 बिल्कुल. बहुत बढ़िया. लोकेश बेटा आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे, यही बस
एक रह गया बात। हाँ बोलो बोलो बोलो। और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अभी पहले इंटरेक्ट करिए, मे भी गलती हो चलेगा, बट हड़बड़ाना नहीं है, मतलब डरना नहीं है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके। हाँ देखो, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये भले ही एल्गा दिख रहा हो नाम, लेकिन ये है साइनोबैक्टीरिया। हाँ, और साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया कहीं ग्रुप का मेंबर है। और याद रखना, प्लास्टिड सिर्फ ग्रीन प्लांट में होता है, सिर्फ ग्रीन प्लांट में, बाकी हर जगह एब्सेंट है। सो इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ ऑल अदर्स। सो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि दो ऐसा ऑर्गेनेल बताइए जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। बहुत सिंपल सा सवाल, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड, प्लास्टिड। है ना, दो, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। चलिए, सो वी आर टू डाउट बोर्ड, सो एनीवन हैविंग एनी डाउट? कुछ भी डाउट हो तो पूछिए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत? हाँ ओम, आपका आवाज एकदम नहीं आ रहा बेटा, आप यूज करिए, आप चैट बॉक्स यूज करिए। नो डाउट। ओके ओके ओके। हाँ ओम, आप चैट बॉक्स यूज करिए, ओम यूज दैट चैट बॉक्स। एंड या प्लीज म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि आपके साइड से बहुत आवाज भी आ रहा है, टेक्निकल वजह से, आपके बैकग्राउंड में आवाज नहीं है, ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से आवाज आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स में पूछिए जो भी पूछना है, कोई इशू नहीं। पूछिए बेटा। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे प्लास्टिड होगा? और आपका ऑटो करेक्ट, प्लास्टिड प्लास्टिक बन गया है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों अलग अलग चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये प्लांट में भी होता है एंड एनिमल में भी होता है, प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। हाँ, while plastid it is only present in plants। तो दोनों सेम कैसे हो सकता है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ हम लोग चलते हैं। ओम, अगर डाउट सॉल्व हो गया बेटा तो हैंड्स डाउन कर लीजिए। या अब हम लोग बात करें वैक्यूल का, ये अगला सेल ऑर्गेनल है जिसको हम लोग स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। वैक्यूल आई मीन एक बहुत बड़ा स्पेस है, खाली जगह, जो कि प्लांट में बड़ा होता है, एनिमल्स में छोटा होता है, ठीक है। इसका काम आयन स्टोर करना या कोई फूड, जैसे मान लो स्टार्च स्टोर करना, बहुत सारा चीज वो स्टोर करता है। और दोनों में डिफरेंस होता है, जैसा कि हमने पढ़ा प्लांट और एनिमल वैक्यूल में। देखो, प्लांट सेल के वैक्यूल का अगर हम बात करें, प्लांट सेल के वैक्यूल का अगर हम बात करें, तो ऐसे तो अभी प्लांट सेल में ही या ओवरऑल बात करते हैं तो दोनों में ही क्या है, फ्लूइड फील्ड है, और इसमें जो फ्लूइड है ना वो टर्गर प्रेशर जनरेट करता है। अब बोलोगे सर ये टर्गर प्रेशर क्या होता है? तो बेटा जब भी किसी चीज के अंदर पानी आता है तो वो पानी उसके वॉल पे प्रेशर मारता है, उस प्रेशर को ही टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ओके, इफ एनी सेल इज गेटिंग फिल्ड विथ वाटर, that water will be applying a force on the wall of that cell and that pressure would be known as Turger pressure. Okay, then talking about this different types of vacuole in both plant and animal cell. Plant cell का vacuole larger size का होता है, जबकि एनिमल सेल जो है ये स्मॉलर साइज का होता है। मे बी मल्टीपल इन नंबर हो सकता है, एक से अधिक वैक्यूल हो सकता है एनिमल सेल में, ठीक है। Plant cell provides structural support. I mean, in plant cell, vacuoles provide structural support. Which type of bacteria snake use that is? ऐसा किसने कहा कि बैक्टीरिया यूज करता है स्नेक ताकि वो खुद को पॉइजन ना हो कर पाए? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, उसका दूसरा कारण है कि वो खुद पॉइजन नहीं होता, ठीक है। चलिए
तो एनिमल सेल में एक से अधिक नंबर में होते हैं ये वैक्यूल, और कई बार तो एब्सेंट भी होते हैं। छोटे होंगे, एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन छोटे होंगे, और हो सकता है एब्सेंट ही हो जाए। प्लांट सेल में बात करें, बड़ा होगा, लार्जर होगा और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। चलिए, वन मोर क्वेश्चन इज देयर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वैक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल के बारे में क्या सही बात है? देखिए और ट्राई करिए, सब लोग ट्राई करिए, यूज दैट चैट बॉक्स। क्या बात है, अनिस का आंसर सबसे पहले आया बी। और ऑप्शन बी। हाँ, और वेरी ऑप्शन गुड, बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। व्हाई इज इट सो? देखो, पूछ रहा है कौन सा वैक्यूल के बारे में सही है, तो हो सकता है कि एनिमल सेल में वैक्यूल हो सकता है नहीं भी हो। हाँ बिल्कुल, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, वेरी गुड बेटा, ऑल ऑफ यू गॉट इट करेक्ट। चलिए, अब अगला स्ट्रक्चर को हम लोग कंपेयर करते हैं, एंड दिस टाइम वी आर कंपेयरिंग दिस लाइसोसोम विद दिस फैक्ट्री। सो जो काम एक फैक्ट्री में जैनिटर यानी स्वीपर, साफ सफाई करने वाला करता है, वही काम एक सेल में लाइसोसोम करता है। ओके, लाइसोसोम का एक और नाम है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और सुनना, सुनना क्या, एक काम करते हैं, वी आर कॉलिंग अवर मास्टर ट्यूटर सो एज टू लर्न मोर अबाउट डिटेल इन दिस लाइसोसोम। ओके, हाँ हाँ बोलो। ये जो लाइसोसोम होता है, जब वो कोई दूसरा लाइसोसोम मर जाता है तो लाइसोसोम उस लाइसोसोम डेड लाइसोसोम को खा जाता है ना। ओम, आपका आवाज अभी वापस से क्लियर नहीं था एंड में, बट जो मैं समझ पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। आपका सवाल ये था कि सर जो भी सेल डेड होते हैं उसको ये लाइसोसोम के पास जाता है और लाइसोसोम उसको खा जाता है, ऐसा कुछ। तो एक्चुअली होता, हाँ चलो ठीक है, यही था तो फिर ठीक है। एक्चुअली जो भी डेड एंड डिकम्पोज पार्ट होता है, डिकेड पार्ट होता है सेल का, वो सब लाइसोसोम के पास जाता है, और लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वैसे एंजाइम जो इसको डाइजेस्ट कर सके, और वो उस पूरे को डाइजेस्ट कर देता है। देखो, इसका एक और नाम है सुसाइडल बैग। ऐसा इसलिए बोलते हैं, कई बार क्या होता है, बाई चांस एक्सीडेंटली लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, और फटेगा तो उसका सारा एंजाइम पूरे सेल में फैल जाएगा, और जब वो पूरे सेल में फैलेगा तो सेल के हर एक पार्ट को डिकम्पोज करता है और सेल को मार देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। चलिए एक बार अब लेट अस कॉल अवर मास्टर ट्यूटर। या of vesicles granules which are going to be enclosed in the membrane. The term lysosome itself is derived from Greek, where lysis, I know you know this, means destruction or dissolution, and soma means body. So breaking down of bodies, pretty simple. Okay, so now we know that lysosomes lyse with the help of hydrolytic enzymes. But what exactly are these hydrolytic enzymes? You might have guessed that they're going to be highly corrosive. Yes, because they have to break down stuff. And they are usually involved in the breaking down of complex molecules into simpler molecules. And what do you know? You have around 60 hydrolytic enzymes that are known to occur in the lysosomes. Now, all of them, one surprising thing, are going to be active in an acidic pH of about 5 only. So this is very similar to the condition that is required for digestion in your stomach. So in a way, the lysosomes are kind of like the stomachs of our cell. They digest stuff. Lysosomes are highly useful in disposing of the waste, breaking down harmful toxins that are produced inside the cell. They're also useful in digesting substances that are obtained from outside the cell. So yes, pretty important. Imagine that you accumulated all of that waste inside you with absolutely no way getting it out. तो चलो देखिए, आपके पास कहीं से भी कोई भी चीज, जैसे मान लो कोई फॉरेन सेल आ रहा है, वो भी लाइसोसोम तक ही आएगा। कोई सेल डैमेज हो चुका है, वो भी लाइसोसोम तक ही आएगा। या मे बी कोई ऐसे मॉलिक्यूल जिनको आपको डिस्ट्रॉय करना है, तो वो भी लाइसोसोम तक आएगा। लाइसोसोम में ओवरऑल डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, सो लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स
Okay, they contain hydrolytic enzymes that help in breakdown. Okay, कोई doubt है? PM means Anis, PM means Prime Minister will be yeah हाँ ओम बोलो. सर जैसे लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की कितनी लिमिट है? कितनी लिमिट है? जितना जरूरत होता है उतना ही होता है, हर तरह का होता है. ठीक है, चलिए. Maybe lysosome contain hydrolytic enzymes which help in the breakdown of biomolecules and disposing of the toxic waste out of the cell. जो भी toxic waste होते हैं, जो भी टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनको सेल के बाहर भेज दिया जाता है. ठीक है, चलिए. अगेन वी आर टू अ पोल क्वेश्चन एंड लेट मी सी हु अमंग यू इज गिविंग मी द फर्स्ट करेक्ट आंसर. लाइसोसोम डू नॉट हेल्प इन. आपके पास 3 ऑप्शन है. सबसे पहले कौन बताता देखता हूं. इट्स श्रुति. क्या बात है, श्रुति बहुत जल्दी बताती है, बहुत बढ़िया बेटा. ओके ओके ओके, श्रुति के अलावा जितना भी आंसर आया सारा गलत नहीं है, एक और सही है. Others also I can see 2 लोग और हैं. जल्दी ट्राई करिए बेटा. बी फास्टर, बी फास्टर. एक और 2 और हैं. जल्दी, एक और जल्दी. Okay, time up. So the correct answer to this question is this: replication. लाइसोसोम टॉक्सिक मटेरियल को डिस्पोज करता है, फॉरेन सब्सटेंस को डिकम्पोज करता है, डाइजेस्ट करता है, लेकिन रेप्लिकेशन में इसका कोई रोल नहीं है. चलिए, सो अगेन एक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, पूछ रहा लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं. बेटा बहुत सिंपल सा जवाब है. मैंने आपको बताया भी कि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो अगर गलती से भी बर्स्ट हो जाए तो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. चलिए, अब बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स. तो ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन. क्या सारे के सारे सेम होते हैं? रेप्लिकेशन मींस डिवीजन बेटा. रेप्लिकेशन मींस डिवीजन. ओके, या डन. सो हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन सेल्स हैं. क्या सारे के सारे सेम होते हैं? द आंसर इज नो. कुछ सेल्स को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल, कुछ को बोलते हैं हम लोग सेक्स सेल्स, या इसको जर्म सेल भी बोलते हैं, या इसको गैमेट्स भी बोलते हैं. ओके, तो ये जो सोमैटिक सेल है ये डिप्लॉइड होता है. डिप्लॉइड यानी हर तरह का 2 क्रोमोसोम, हर नंबर का. जैसे मान लो मेरे पास 4 तरह का पेन है, रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक, और चारों पेन 2 ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन, 2 रेड पेन, 2 ग्रीन पेन, तो हम बोलेंगे हम डिप्लॉइड है, क्योंकि मेरे पास हर तरह का पेन 2 है. उसी तरह अगर कोई ऐसा है जिसके पास हर तरह का सिर्फ 1 पेन है, हम बोलेंगे वो हैप्लॉइड है. ठीक है, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड. ध्यान रखिएगा, सोमैटिक सेल हमारे बॉडी में जहां भी रिप्रोडक्शन होता है, जिस सेल का रिप्रोडक्शन में कोई फंक्शन है, उसके अलावा हर सेल को हम सोमैटिक सेल बोलते हैं. हमारा जनरल बॉडी सोमैटिक सेल से बना है. जर्म सेल ये सिर्फ वही होता है जहां गैमेट बनना होता है, जैसे एग बनना हो, एक सेल या स्पर्म, तो वहां जर्म सेल होगा. ओके, सेक्स सेल का ही एक और नाम जर्म सेल है. अच्छा, आखिर इतने सारे सेल हमारे बॉडी में कैसे बनते हैं? आंसर बहुत सिंपल है, सेल डिवीजन से. अभी सेल डिवीजन क्या होता है? अगेन लेट मी कॉल अवर मास्टर ट्यूटर सो दैट वी कैन गेट इनटू इट. A small sapling grows into a big plant. A pup quickly grows up to be an adult dog. And we ourselves have grown up so much since our life began as a single fertilized cell. Also, whenever we get wounded, our skin gets cut or damaged, new skin can grow back in the area that was wounded. The point I'm trying to make here is that growth does not only occur in the organism as a whole, but can happen on an on-demand basis. That is, in certain parts as and when it is required. As a cell grows in size, it accrues more mass. And at one point, its size simply cannot increase any further. And it divides into 2.
the new cells then restart the process, divide once again, and the process continues forever. Now this is termed as cell division. Now rate of growth, the cell division varies between organisms and also among different cells within the same organism. Cells lining the intestinal walls and the topmost layer of your skin, in fact, are replaced on a regular basis. When damaged, cells of the liver, for example, can quickly divide and grow back, but they don't otherwise divide or grow. In fact, nerve cells almost always don't divide in an adult human. On the other hand, some cells can just keep growing and dividing continuously, and they form a lump or mass of cells called as a tumor. So now you can start to appreciate how important cell division is, and as with any critical biological process, cell division also follows some basic rules and has checks and balances in place to regulate it. A lot of nutrients, energy, and effort go into physically dividing a parent cell into two equal daughter cells. One of the central tenets of cell division are that genetic material needs to duplicate or replicate so that each daughter cell not only has the same genetic material as each other, but also end up resembling the parent cell. Now, the series of events that include cell division and the cell's preparation for its, especially replication of genetic material, are termed as the cell cycle. बहुत बढ़िया, चलिए एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन सेल साइकिल का। देखो, सेल डिवीजन नॉर्मली बहुत सिंपल सा बात है, एक पेरेंट सेल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होगा, यू कॉल इट एज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। दोनों क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट सेल रिप्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है, where each parent cell give rise to two or more daughter cells. Okay, splitting into two individual, आप बोलो ज्यादा चलेगा, two daughter cells, ठीक है। नेक्स्ट, सेल डिवीजन क्यों होता है? यूनिसेलुलर में तो रिप्रोडक्शन के लिए ही होता है, यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन यानी रिप्रोडक्शन, जबकि मल्टीसेलुलर में कई बार तो कुछ डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए होता है, कई बार ग्रोथ के लिए भी होता है। इन मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर में just for reproduction, like in amoeba, like in leishmania, ठीक है। अब देखो, जैसा मैंने कहा दो तरह का होता है, पहला माइटोसिस। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल जो कि 2n है, डिप्लॉइड है, हर क्रोमोसोम दो दो सेट में है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टू सेल्स। माइटोसिस एक सेल से दो डॉटर सेल बनता, देखो एक सेल से दो डॉटर सेल बना। क्रोमोसोम नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा, देख रहे हो, यहां भी 2n था, यहां भी 2n है, ठीक है, और सिर्फ एक बार डिवीजन हुआ है, ये माइटोसिस है। अब एक बार जरा देखते हैं आगे, गैमेट बनते वक्त कौन सा डिवीजन होता है? गैमेट बनते वक्त जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस में खास बात है, एक सेल से चार सेल बनता है, देखो ओवरऑल क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, देखो, और यहां पे दो सिक्वेंशियल डिवीजन होता है, एक साथ दो डिवीजन, एक बार डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बना, और फिर वो दो सेल फिर डिवाइड करके एक सेल से चार सेल बनाएगा, ये है मियोसिस। मियोसिस में तीन बात, एक सेल से चार सेल, दो एक साथ डिवीजन, सिक्वेंशियल डिवीजन, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है और सिर्फ एक डिवीजन होता है, ठीक है। चलिए माइटोसिस और मियोसिस का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। माइटोसिस सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस सिर्फ जर्म सेल में होता है। वैसे माइटोसिस जर्म सेल में भी हो सकता है, याद रखिएगा, कैन ऑल्सो अकर इन जर्म सेल, ओके। एक न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यहाँ दो न्यूक्लियर डिवीजन होता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग, मतलब हाफ हो जाता है। माइटोसिस में एक सेल जो डॉटर सेल है मे बी हैप्लॉइड हो सकता है या मे बी डिप्लॉइड भी हो सकता है। अगर हैप्लॉइड में हो रहा तो हैप्लॉइड रहेगा, डिप्लॉइड में हो रहा तो डिप्लॉइड हो जाएगा, डिप्लॉइड ही रहेगा मेरा मतलब है। मियोसिस में जो भी होगा, जो डॉटर सेल्स, वो हमेशा हैप्लॉइड होगा, फिक्स है, यहाँ कोई चेंज नहीं, डॉटर सेल्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। एक और बात, मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, और माइटोसिस का भी एक और नाम है, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं।
पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड्स ओनली, 5 सेकंड, या लोकेश बोलो। Option B. बी, बेटा करेक्ट पूछा है, माइटोसिस को Sir, रिडक्शन, option A यस option. होगा, म्यूसिस में B क्रोमोसोम wrong नंबर, है sir. हाँ बी B रॉन्ग है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। सो बेटा नाउ वी आर टू दिस डाउट बोर्ड, सो एनीवन हैविंग एनी डाउट, कोई डाउट है तो बोलिए कुछ भी, कोई डाउट नहीं? Can you show the before slide क्वेश्चन ये देखो, question? डन, Before question. Sir, चलिए सो before question. एक और क्वेश्चन ये लो, Yes sir. एक second sir. Can I हाँ write? जल्दी 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 लिख लो थोड़ा सा। चलिए ऐसे आप लोग को कोई डाउट नहीं है तो लेट मी मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay sir. I write. या डन, Screen. चलिए बहुत बढ़िया। नाउ वी आर टू अ पोल क्वेश्चन, आई विल बी गिविंग यू ओनली 20 seconds फॉर दिस। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल डज नॉट हैव डीएनए, इनमें से किसके पास डीएनए नहीं होता है, जल्दी बताइएगा, बहुत सिंपल है। मन्नत सबसे पहले, फिर श्रुति, बहुत बढ़िया, बाकी लोग जल्दी ट्राई करिए, ओम भी सही बताया, बाकी लोग जल्दी जल्दी जल्दी, 10 more seconds, 10 more seconds, 5 more seconds नाउ, जल्दी करिए बच्चा लोग। रिति, लोकेश, हर्ष, आप 3 बचे हैं बेटा, जल्दी करिए जल्दी करिए। ओके सो अगर इश्यू है तो लेट मी सॉल्व दिस। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, माइटोकॉन्ड्रिया, आई मीन गोल्जी बॉडी। बेटा हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल थे, उनके पास Sir. अपना डीएनए होता है। हाँ बोलो। Sir, the poll question slide was not showing. अच्छा अच्छा अच्छा, नो इश्यूज, तब तो कोई बात ही नहीं है, चलिए टेक्निकल इशू होगा मे बी। ओके बेटा, सो नाउ आई गेस इट्स टाइम फॉर मी टू वाइंड अप द सेशन, बट बिफोर दैट लेट मी आल्सो रिवाइज द सेशन। हमने 4 सेल ऑर्गेनेल के बारे में आज भी पढ़ा, पहला माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस बोल रहे थे, सेमी ऑटोनोमस था, अपना डीएनए होता है। फिर प्लास्टिड पढ़े जो सिर्फ प्लांट में है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट एनिमल दोनों में था। 3 तरह का प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से, क्रोमोप्लास्ट कैरोटिनॉइड की वजह से, एनी अदर कलर अदर देन ग्रीन, ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस था, रूट्स में मिलता था, मेनली स्टोरेज में रोल प्ले था, वैक्यूल, वैक्यूल प्लांट्स में बड़ा होता है, एनिमल में छोटा होता है, ये इसका काम स्टोरेज था। देन लाइसोसोम, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे जो कि पूरे सेल को या किसी बायोमोलिक्यूल या किसी फॉरेन बॉडी को ब्रेक करने का काम करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस एक सेल से 2 सेल, क्रोमोसोम नंबर सेम, एक बार डिवीजन। मियोसिस एक सेल से 4 सेल, 2 बार डिवीजन, और क्रोमोसोम नंबर हाफ्ड। ठीक है, चलिए बेटा अगेन वी आर टू दिस डाउट बोर्ड, एनीथिंग जो आपको पूछना हो पूछिए, नहीं तो फिर मैं एंड कर रहा हूँ सेशन। बोलिए कोई डाउट है, एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क? No doubt. नो डाउट, बहुत बढ़िया। चलिए सो बेटा आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बट या एक चीज आपको मैं रिमाइंड कर दूं, आज हमने स्टार्टिंग में ही मास्टर क्लास एक्सेल के बारे में बात करा था, मैं वापस से उस लिंक को पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, मास्टर क्लास एक्सेल के बारे में ध्यान रखिएगा। 7th में 2 PM लाइव क्लास होगा, वीवीएस लक्ष्मण सबसे पहले मिलेंगे आपसे, और आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, पेरेंट्स को, सबको इनवाइट कर सकते हैं, साथ में देख सकते हैं। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बट या प्लीज कम बैक एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। चलिए थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 बाय, Goodbye, sir. या गुड डे, गुड डे, Good day, sir. गुड डे बेटा।